Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. See, today I'll discuss about general aptitude question. General aptitude question, all total 20 questions I try to discuss in this video, and this one from December 2024. Okay. See, here first question is given that if a map is placed in such a manner that southwest become east. Try to understand my point. If a map is placed in such a manner that southwest become east, then what will north become? तो क्वेश्चन में क्या दिया है? साउथ वेस्ट direction has been changed to east. ये गिवन है, ठीक है, चेंज टू ईस्ट. ओके, ये गिवन है. देन व्हाट विल बी नॉर्थ बिकम? सो नॉर्थ कहां पे शिफ्ट होगा? सो हम क्या बोल सकते हैं? ये जो इंफॉर्मेशन दिया है इससे हम बोल सकते हैं सो द होल मैप is rotated obviously with same angle, rotated by the same angle, right? No confusion is there, by the same angle. ठीक है. ऐसा सिनेरियो होगा तो अंडर दिस रोटेशन क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ शिफ्ट होगा सेम एंगल में, ठीक है. सो अंडर दिस रोटेशन, अंडर this rotation, same angle rotation, right? Under this rotation north will also shift by same angle. नॉर्थ के बारे में ही पूछा गया है. नॉर्थ will also shift by same angle, right? तो नॉर्थ कहां पे शिफ्ट होगा? नॉर्थ, therefore नॉर्थ become, देखो साउथ वेस्ट कहां पे गया? ईस्ट पे गया. तो हमारा जो नॉर्थ कहां पे जाएगा? साउथ वेस्ट. ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट. तो साउथ वेस्ट जब ईस्ट पे जा रहा है, जो एंगल पे रोटेट कर रहा है सेम एंगल पे बाकी जितना मतलब जो मैप जो है वो पूरा रोटेट होगा, वो सेम एंगल पे रोटेट होगा. तो नॉर्थ कहां पे जाएगा? नॉर्थ भी सेम एंगल पे रोटेट होगा. तो साउथ वेस्ट ईस्ट पे गया तो नॉर्थ कहां पे जाएगा? साउथ वेस्ट तक जाएगा, राइट. सो आपका आंसर होगा साउथ वेस्ट. आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. ओके, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू it is given that if water of pH 8 is diluted 100 times with neutral water, means neutral water का pH क्या होता है? 7 होता है, ठीक है. then it will become acidic, remain basic, become neutral, become heavy. What is the scenario? ठीक है. अच्छा, ये क्या है? सी, वाटर विथ pH 8 diluted 100 times with neutral water pH 7. अच्छा, आपके पास वन इंफॉर्मेशन होना चाहिए. वाटर विथ pH 8 is
बेसिक, मतलब यू कैन से स्लाइडली बेसिक, slightly basic. Okay, so when it is diluted with neutral water, its pH क्या होगा? Its pH move closer to pH 7, क्योंकि 100 टाइम्स ऐड कर रहा है। समझ में आया कि डाइल्यूटेड 100 टाइम्स विद न्यूट्रल, मतलब इसका 1 यूनिट लिया तो उसका 100 यूनिट्स ले रहा है न्यूट्रल वाटर के साथ, ठीक है। बट it see does not become acidic, does not acidic, fine। Therefore after dilution it becomes slightly basic, dilution it becomes slightly basic, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम बोल सकते हैं रिमेन बेसिक, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। तो आपको ये पीएच के बारे में थोड़ा सा, वाटर का पीएच के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 15 distinct points are randomly placed on the circumference of circle. Try to understand my point. See, 15 distinct points are randomly placed on a circumference of a circle. How many distinct straight line at most can be formed by pairing among these points? So हमारे पास कितना पॉइंट था? 15 distinct points are there. We need how much point to create a straight line? 2 points we need to choose. From 15 we need to choose 2 points. So what is the answer? Obviously number of lines क्या होगा? Number of lines, straight lines obviously distinct कितना होगा? 15 see 2 possibilities are there. Basically 15 choices, 15 possibilities are there, 15 points are there. उनमें से कितना पॉइंट चूज करना है? रैंडमली 2 points we need to choose. We need to combine them. तो there are possibility क्या है? 15 C2, तो इसका फॉर्मूला क्या है? 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 15 माइनस 2 फैक्टोरियल 15 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 13। तो ऊपर में क्या होगा? फॉर्मूला यू नो, 15 इंटू 14 इंटू फैक्टोरियल 13, और नीचे फैक्टोरियल 13 भी है, 2 फैक्टोरियल है मीन्स 2 है, तो ये कट जाएगा, इनमें से 2 7 पे कटेगा, तो आपका आंसर होगा 15 इंटू 7। तो 15 इंटू 7 कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 15 इंटू 7 5 है 3 105, 105 इज द करेक्ट आंसर। सो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था। 15 डिस्टिंक्ट पॉइंट में से 2 पॉइंट को चूज करना है। लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स आर नीडेड, सो वी आर डन। सी, यहाँ पे एक कॉन्फ्यूजन हो सकता है, वो कॉन्फ्यूजन को भी मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो, सिंस द पॉइंट्स आर ऑन ए सर्किल, मतलब सर्कमफेरेंस के ऊपर है, ठीक है। सो नो 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट, यू कैन से। सो
no three distinct points are collinear. Now there is no other confusion, right? इतना इंफॉर्मेशन तो लॉजिकली हम लोग बोल दिए हैं, therefore we can do easily. Okay. Question number 4. Question number 4, it is given that in a population of microbial cell, the initial population is 50. Try to understood. The initial population is 50, means when time is 0, the population is 50. The growth rate is 0.1 per hour. मतलब R दिया है, मतलब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म चूज किया, चूज PT पॉपुलेशन, सो P से डिनोट किया इनिशियल पॉपुलेशन इनटू एक्सपोनेंशियल, ठीक है। गिवन क्या है, P नॉट इनिशियली, मतलब P नॉट मीन्स क्या है, P एट T इक्वल टू 0, इसका वैल्यू दिया है 50 दिया है, R का वैल्यू दिया है 0.1। देन बोल रहा है इफ द पॉपुलेशन ग्रोस एक्सपोनेंशियली, ऑब्वियसली तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही तो चूज किया इसीलिए, ठीक है, फॉर दिस लाइन, राइट, एक्सपोनेंशियल था इसीलिए चूज किया। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर 10 आवर्स, तो बोल रहा है T इक्वल टू 10 होगा तो P10 का वैल्यू फाइंड करो, तो बताओ 50 होगा इंटू ई पावर में 0.1 इंटू 10 होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 50 इंटू ई पावर 1 होगा। तो इसका वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 50 इंटू ई का वैल्यू 2.718 अप्रोक्सीमेटली यू कैन कैलकुलेट। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट वेट फॉर 1 मिनट, 2.718 इंटू 50, इसका वैल्यू आएगा 135.9। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 136 तो बोल ही सकते हैं ना। तो आपका क्वेश्चन में दिया होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। Question number 4 is done. Very easy question. You can do yourself easily. Okay. Now question number 5. So think about this question. It is given that the given figure shows data points and a line fed by the least square method. Least square method you know in linear algebra as well. You think about this लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, सो यहां पे जो दिया है मीन टेम्परेचर T फॉर द सिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन। सी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट R इज ऑल्सो गिवन इन द फिगर। सी क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट R का वैल्यू दिया है, प्रॉफिट का वैल्यू दिया है 4T माइनस 86, मीन टेम्परेचर T क्या है, मीन टेम्परेचर ऑफ द सिटी, ये दिया है, ठीक है। देन क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन। ओके, बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ओके, ऑफ टेम्परेचर इज मिनिमम। सेकेंड बोल रहा है 83% ऑफ द वेरिएशन इन द प्रॉफिट इज explained by the variation in temperature. C ऑप्शन बोल रहा है rise in temperature causes profit to increase, and लास्ट ऑप्शन बोल रहा है at 25 degree C estimated profit is 14 million rupees. ओके, अच्छा, प्रॉफिट मिलियन में दिया है रुपीस। ओके फाइन, अच्छा। सो यहां पे क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है आपको, प्रॉफिट दिया है आपको 4T माइनस इतना, 4T माइनस 86, सॉरी 4T माइनस 86, ये दिया है आपका प्रॉफिट दिया है, ठीक है, ये दिया है। अच्छा, एट 25 डिग्री C प्रॉफिट कितना होगा,
प्रॉफिट कितना होगा, टेम्परेचर 25 दिया है तो 4 इंटू 25 माइनस 86, ये क्या हो जाएगा, 100 से 46 हटा दोगे तो, सॉरी 86 हटा दोगे तो 14 होगा, ठीक है। सो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज 14 मिलियन रुपीस, राइट। ये तो यूनिट मिलियन में ही दिया है, मिलियन रुपीस, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में देखो डी ऑप्शन सही दिख रहा है, एमसीक्यू था, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और कुछ देखना ही नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूं फर्स्ट ऑप्शन के लिए। फॉर ऑप्शन ए द लीस्ट स्क्वायर मेथड minimize squared vertical errors in profit, not temperature. फाइन। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड मिनिमाइज स्क्वायर वर्टिकल एरर इन प्रॉफिट नॉट टेम्परेचर, यहां पे क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को मिनिमाइज करता है, तो ये ऑप्शन तो गया, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड वही काम करता है, बट यहाँ पे कुछ टेम्परेचर के बारे में बोला है, बट टेम्परेचर के ऊपर वो कुछ काम ही नहीं करता, ठीक है। स्क्वायर वर्टिकल एरर को मिनिमाइज करता है प्रॉफिट में, ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन आपको बोला है 83% ऑफ द वेरिएशन इन प्रॉफिट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, बेसिकली एक्सप्लेन वेरिएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर दिया है, तो ये एक्सप्लेन वेरिएशन क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर का वैल्यू है 0.83 का होल स्क्वायर, ये ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0.83 ना। सी आर का वैल्यू 0.83 है, बट यहां पे बोला है एक्सप्लेन बाय प्रॉफिट इज एक्सप्लेन बाय वेरिएशन इन प्रॉफिट, वो क्या है, फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू 0.83 का स्क्वायर, तो वो 83% तो नहीं हो सकता, कुछ और होगा, बी ऑप्शन गया, ठीक है। और फॉर सी ऑप्शन बोल रहे हैं राइस इन टेम्परेचर कॉज प्रॉफिट टू इंक्रीज, सी दिस वन ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज correlation does not imply, see rise in temperature cause profit to increase, it is not true, because correlation does not imply causation, ठीक है। फाइन, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 71, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 71, if we exclude one of these number the average becomes 75। सी आपको बोल रहा है 7 नंबर का एवरेज 71, तो 7 इंटू 7 इज द total of 7 numbers, total of 7 numbers equal to 7 into 71, जो कि हमारा 497 हो जाएगा ना। बोल रहा है if we exclude one number then total of 6 number, 6 numbers क्या होगा, क्योंकि 75 एवरेज दिया है, तो 6 इंटू
75, इसका वैल्यू क्या होगा 0 एंड 40, 43, 42, 42, 3, 45, 450 हो रहा है 497। तो ऑब्वियसली द excluded number is exclude 1 इक्वल टू 497। टोटल जो 7 नंबर का टोटल हुआ था उनमें से 6 नंबर का टोटल को हटा देंगे तो हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 47। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, होपफुली यू गॉट माय एक्सप्लेनेशन, इजी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, question number 7 it is given that choose the option to fill the blank that will make the following statement logically correct. The number of occurrence of the letter n in this sentence is correct. ये करेक्ट है, ठीक है, सॉरी कहाँ गया, सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। सी, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द लेटर एन पूछा गया है, ठीक है। देखो यहां पे देखो एक है, अच्छा यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, 4 है, 5 है, 6, 1 2 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ये था इज करेक्टली counted, करेक्टली काउंटेड एस, मीन्स यहां पे देखो काउंटेड के अंदर एन है, ठीक है, एक एन हो गया, एन इज डैश, ठीक है, ये था क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर कितना होगा, देखो एक है यहाँ पे एक है, 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, यहाँ पे 2 है, टोटल 5 6 है, यहाँ पे है 7, 7, SEVEN, 7, ठीक है, ठीक है, 7, ठीक है, ठीक है, ये 7, हाँ, बट मिस्टेक कहाँ हो सकता है यहाँ पे, ट्राई ये सोचो जरा, देखो ये सेंटेंस को फुलफिल करना है, ठीक है, यहाँ पे एक एन मिल गया, यहाँ पे दूसरा एन मिल गया, यहाँ पे और एक मिल गया, यहाँ पे एक मिल गया, 4, यहाँ पे 5 6, और यहाँ पे एक मिल रहा है 7 7, ठीक है। बट ये क्वेश्चन को जब करोगे ये एन मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा, बट ये स्टेटमेंट फिर गलत हो रहा है ना, यहाँ पे 7 से फिलअप किया तो गलत हो जाएगा, तो बट इसको मैं 9 लिखूं तो NINE, देखो कैसे कंप्लीट हो रहा है, यहां तक 7 था, यहाँ पे एक है, तो ये देखो 1 + 1 + 1 + 1 4 2 6 7, ये 2 को चूज किया तो टोटल 9 होंगे, एंड इसके अंदर 9 ही है, तो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बट यहाँ पे मिक्स्ड था कि 9 को पुट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एन कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी था, इसीलिए ये क्वेश्चन ट्रिकी था। तो लॉजिकली ये डैश को फिलअप करने के बाद नंबर ऑफ एन मेंटेन करना है जो कि इसके साथ इक्वल हो जाए, 9 पुट किया तो टोटल नंबर ऑफ 9 होगा, 8 पुट करेंगे तो 7 पीस होगा, तो उसको छोड़ के तो वो होगा नहीं, 7 पुट करेंगे तो 8 पीस एन हो जाएगा, वो भी होगा नहीं, 6 तो होगा नहीं, समझ में आया, दैट्स व्हाई आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन दैट इन ए बोर्ड मीटिंग ऑफ 20 क्या बोला है 20 directors, 6 shook everyone else hand but the shake hand basically, right, but
The remaining 14 did not shake each other hand. The total number of handshake in the meeting. See. So, see, total possible handshakes among 20 people इक्वल टू 20C2। ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 20 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 20 मीन्स 18 हो जाएगा। ऊपर में 20 इंटू 19/2 होगा, तो 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 190 हैंडशेक्स। ठीक है, 190 हैंडशेक्स। बट क्वेश्चन इज, उनमें से 14 पीपुल, बट remaining 14 people did not shake hands. People did not shake hands. ठीक है, among themselves obviously, एक दूसरे के साथ। The number of such missing handshake कितना होगा? The number of such missing handshake कितना होगा? 14C2। ये क्या होगा? 14 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 12। तो ऊपर में क्या होगा? 14 इंटू 13/2, तो 7 हो जाएगा। 13 इंटू 7 91 होगा। तो देयरफॉर एक्चुअल नंबर ऑफ हैंडशेक, कितना होगा? जितना हुआ था, होना चाहिए था, टोटल कितना था? 190। उनमें से कितना पॉसिबल नहीं हुआ? 91। तो कितना बचा है? 99। तो 99 आर रियली पॉसिबल हैंडशेक्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ए बोल रहा है मैच, बी बोल रहा है ट्रॉफी, सी बोल रहा है टॉस, डी बोल रहा है रिजल्ट। तो पहले क्या होना चाहिए? पहले टॉस होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैच होगा, उसके बाद क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट फाइनलाइज हो जाएगा, तो जो टीम विनर होगा उसको ट्रॉफी मिलेगा। ये लॉजिकल वे है ना। तो टॉस का वैल्यू क्या है? टॉस मींस, टॉस का वैल्यू क्या है? टॉस सी, मैच का वैल्यू ए, रिजल्ट का वैल्यू डी, ट्रॉफी का वैल्यू बी। तो मतलब सी ए डी बी। सी ए डी बी कहां पे मिलेगा? सी ए डी बी आपका ऑप्शन ए में सही हो रहा है। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे, ए spherical ball is placed inside a cubic box. A spherical ball is placed inside a cubic box. Okay. If the diameter of the ball is assumed as the side of the box, the diameter of the ball is assumed as the side of the box, what is the approximate percentage of the volume be empty? See, let side of the cube be A, ठीक है। Now since the diameter of the sphere is equal to the side of the cube, the diameter of the same side of the box is as same as the side of box. This sentence imply करता है कि R इक्वल टू A/2। ठीक है, साइड ऑफ द क्यूब क्या हुआ? A हुआ,
तो आर जो होगा a/2 होगा। ठीक है, ठीक, आर जो होगा वो a/2 होगा। अच्छा, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? बॉल, स्फेरिकल बॉल। तो दैट्स व्हाई वी नीड दिस। स्फीयर क्या होगा? हाफ 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। नाउ यहां पे जो स्फीयर का आर जो बोला है वो आर a/2 है, तो दैट इज यहां से हम बोल सकते हैं 4/3 इंटू पाई इंटू आर, आर मीन्स a/2 होल क्यूब। यहां से मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं तो ये होगा 4/8 मीन्स बेसिकली होगा 3 इंटू 6 पाई/6 a क्यूब। ठीक है, ठीक है। Therefore, fraction of the cube occupied by the sphere is पाई/6 a क्यूब बाई a क्यूब। यहां से मिलेगा पाई/6 जो कि इक्विवेलेंट टू 0.524। ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट टू 524। यहां से मतलब क्या है? 52.4%। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 52.4% volume is occupied। Therefore empty volume कितना होगा? 100 में से हटा देंगे। empty volume equal to 100% माइनस 52.4%। यहां से आपको मिलेगा 47.6%। ठीक है, 47.6% इज द आंसर। आपका क्वेश्चन में दिया है, देखो 47.6 को 5 से ज्यादा है तो इसको इक्विवेलेंट टू 48% तो हम मान सकते हैं ना। तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, दिस वन डन। ये बोल रहा है if I walk east 100 meter, turn right, walk 60 meter. See, so initially walk east. See, east west north south, ये जो डिरेक्शन ग्राफ क्या होता है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डिरेक्शन ग्राफ क्या होता है? देखो, इसको मैं नॉर्थ मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये साउथ होगा और ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा। तो पहले क्या बोल रहा है? ये वॉक कर रहा है कहां से कहां तक? देखो, यहां से शुरू किया, मान लो ये मैन है। ठीक है, ये शुरू किया, कहां जा रहा है? ईस्ट 100 मीटर गया, सॉरी ईस्ट में 100 मीटर गया, 100 मीटर ईस्ट में गया। ठीक है, देन बोल रहा है टर्न राइट एंड वॉक 60 मीटर। ये गया ईस्ट, ईस्ट में जाने के बाद टर्न राइट, राइट में मूव किया, ये इधर जा रहा था, इधर मूव किया 60 मीटर। ठीक है, टर्न राइट एंड 60 मीटर गया, मतलब साउथ में जा रहा है 60 मीटर, 60 मीटर गया। ठीक है, साउथ में गया। टर्न लेफ्ट, इधर जाने के बाद लेफ्ट में गया, वॉक 150 मीटर, यहां से गया 150 मीटर। कहां पे गया? वेस्ट में गया ना। वहां से बोल रहा है इतना गया, इतना जाने के बाद इधर गया दम, वहां से कहां गया? वहां से बोल रहे टर्न लेफ्ट अगेन। ठीक है, टर्न लेफ्ट अगेन, लेफ्ट अगेन। सी,
साउथ, टर्न राइट फ्रॉम ईस्ट, टर्न राइट फ्रॉम ईस्ट मीन्स साउथ पे गया. नाउ देन टर्न लेफ्ट राइट टू ईस्ट, ईस्ट থেকে ईस्ट से राइट गया, राइट जाने के बाद लेफ्ट, लेफ्ट गया फ्रॉम साउथ मीन्स फेसिंग ईस्ट, राइट. अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम ईस्ट. ऐसे सोचो कि पहले वो ईस्ट में गया, फाइन, ईस्ट में से टर्न 60 मीटर साउथ में गया, ईस्ट में से साउथ में गया, साउथ में से लेफ्ट मीन्स फेसिंग साउथ में गया, साउथ में से लेफ्ट मीन्स अगेन ईस्ट में गया, ठीक है, ईस्ट में गया, एंड ईस्ट में से ईस्ट गया, ईस्ट में से लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स इधर मीन्स नॉर्थ में गया. तो ये था मेरा 100 मीटर, ये था 60 मीटर, देन टर्न लेफ्ट 150 मीटर, 150 मीटर, देन आई वुड फेसिंग कौन सा पोर्शन को फेस करेगा, नॉर्थ, ठीक है, ये सही है. ऐसे सोचोगे तो बेहतर होगा, ठीक है. तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, आपका आंसर होगा बी, ठीक है, आपका आंसर होगा बी, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड टेस्ट एग्जाम, क्या बोला है, टेस्ट एग्जाम ईस्ट आर कोडेड. सी टेस्ट, TEST, टेस्ट के लिए बोल रहा है 1382. अच्छा अच्छा, एग्जाम ये है 2182, ठीक है. अच्छा, देन बोल रहा है ईस्ट, ये बोल रहा है 1937, ठीक है, ये दिया है, ठीक है. अच्छा, टेस्ट में देखो ये और ये सेम है, to the words coded as this but not necessarily in the order. Okay, ये जो है मैंने गलत कुछ लिखा, ठीक है. यहाँ पे आप ऐसे सोचो, मैं कुछ सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, दोनों सेम सेम है, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम होना चाहिए. तो इनके लिए मैं चूज कर रहा हूं. तो इसको सोचो, इसको हटाओ, इसको मैं इरेज कर देता हूं. आपके पास ऐसा सिनेरियो है, ठीक है. यहां से आप इसको ऐसे बोलो, टेस्ट से ये होगा, ठीक है. नाउ टी का वैल्यू 2 है, देखो ये टी है, ये 2 है, तो इसका वैल्यू ये होगा. और एग्जाम में देखो ये ई का वैल्यू 1 है, देखो यहाँ पे ई का वैल्यू 1 है, ठीक है. तो यहां से आप इसको ऐसे सोचो, ठीक है, ये है सिनेरियो. सो MATE का वैल्यू क्या होगा बताओ. तो ये M का वैल्यू क्या है, 7 है, ये 7 है. अच्छा, A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 है. T का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो T का वैल्यू 2 है. और E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 है. 7321 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. ये होगा बी ऑप्शन, आपका आंसर होगा बी ऑप्शन. ऐसे आप मैचिंग कर सकते हो. यहाँ पे पैटर्न को देख के इसके साथ मैचिंग किया लॉजिकली. उसके बाद टी का वैल्यू हमारे पास, एम का वैल्यू बेसिकली 7 है, और ए का वैल्यू बेसिकली 3 है, टी का वैल्यू बेसिकली 2 है, ई का वैल्यू बेसिकली 1 है. इनको यूज करके हमें आंसर मिल गया, ठीक है. आपका 12 का आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, ऑल दोज हु pass an entrance test take admission into a certain institute. One of these some graduate with a degree in 2 years, while some fail and are removed. Okay, all graduate from that institute get job in the same year. In 2022 no one took admission in that institute. Which of the following does not do? See, try to understood. Here given that all those who pass in the entrance test take admission, ठीक है.
it is given that all those who passed in the entrance test take admission, right? Take admission. Since no one took admission in 2020, so no one took admission in 2022, that implies no one passed in the entrance test. No one passed in the entrance test कब? In 2022. Fine, ठीक है. But it does not necessarily mean that no one write entrance test, right? मतलब entrance test दिया था but पास नहीं किया. No one write entrance test in 2022. That is wrong, ना? Not necessarily true. Not following necessarily true. ठीक है. अच्छा. No one passed in the entrance test in 2022. No one passed in the entrance test 2000. बिल्कुल सही है. ठीक है. No one graduated from the institute in 2024. 2024 के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है, ये पॉसिबल है. मे बी पॉसिबल. हमारा जो बी ऑप्शन था ये है मस्ट बी पॉसिबल, बट may be possible. No one wrote the entrance test in 2022. No one get job from the institute in 2000. this. ठीक है. So no one get job, ये D may be possible, but ये तो होगा ना कि ये जो ए ऑप्शन है ये कभी पॉसिबल नहीं है. नो वन रोड द एंट्रेंस टेस्ट इन 2022. नॉट नेसेसरी टू, इसका कोई जरूरत है ही नहीं. मतलब एंट्रेंस टेस्ट दिया था पास नहीं हुआ, ये तो हो सकता है ना. तो पॉसिबिलिटी क्या होगा आपका? आंसर होगा ए ऑप्शन. नॉट नेसेसरी टू पूछा गया है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है Frank, Sam, Tom, David come first, second, third, fourth in a race, but not necessarily in order. Only one had the first letter of position matching that of his name. Okay, only one had the same letter of position matching that in his name. Okay. If Tom came first, Tom फर्स्ट है, Sam not second, COND not second, Tom फर्स्ट है, Sam सेकेंड नहीं है, तो Sam सेकेंड नहीं है, इसका मतलब Tom फर्स्ट है, वो तो कॉन्फर्म कर दिया. अच्छा, सैम सेकेंड नहीं है, ठीक है, तो फ्रैंक क्या होगा? फर्स्ट के साथ मैच करना है, ये फोर्थ होगा. ठीक है, ये फोर्थ होना ही पड़ेगा. ठीक है, फ्रैंक को फोर्थ होना ही पड़ेगा. बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा वो फर्स्ट लेटर और फर्स्ट पोजीशन के साथ सेम होना है. ठीक है, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया. ये टॉम को फर्स्ट घोषित कर दिया गया, टॉम थर्ड नहीं हो सकता. दैट इंप्लाइज नॉट थर्ड, ये थर्ड नहीं हो सकता. ठीक है, तो टॉम थर्ड नहीं हो सकता, खत्म. सैम सेकेंड नहीं हो सकता, तो फोर्थ होगा कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते. सैम सेकेंड मतलब ये एस मैचिंग नहीं हुआ, तो सैम नहीं हुआ, तो फ्रैंक को तो फोर्थ होना पड़ेगा, क्योंकि डी के साथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का किसी के साथ मैचिंग नहीं है. डी से किसी ने भी शुरू नहीं करेगा, तो डी कुछ पॉसिबल नहीं है. तो ऑब्वियसली हमारा जो फ्रैंक है उसको फोर्थ होना पड़ेगा. ठीक है, डेविड को थर्ड होना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. डेविड को फोर्थ होना पड़ेगा, वो भी नेसेसरी नहीं है, बट फ्रैंक को फोर्थ होना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्राइटेरिया नहीं होगा
कि ओनली वन हैड द फर्स्ट लेटर ऑफ द पोजीशन मैचिंग विद द हिज नेम, दैट इज मैचिंग विद हिज नेम। तो ये पॉसिबिलिटी कब होगा? फ्रैंको फोर्थ होना पड़ेगा। आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, फाइन। अच्छा, ये हो गया 14 भी खत्म। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए fictional country, in the fictional country of Namibia, अच्छा Namibia, which of the following province in the odd one out? In the fictional country of Namibia, which of the following provinces is the odd one out? See, the word contain number names hidden inside them, inside them। देखो हमारे पास क्या है, NECON, contain वन, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके अंदर देखो, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर देखो 2 है, इसके अंदर देखो 5 है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके अंदर does not contain any such number name। बाकी सब में मैं दिखा दिया। इसके अंदर देखो 5 है, VE 5, इसके अंदर देखो 2 है, इसके अंदर देखो 1 है, बट इसके अंदर कुछ नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा बी, ऑड वन। 1, ये देखो 2, ये 5, ठीक है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। आपका आंसर होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट डिपार्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इन द 5 subjects such that physics and chemistry get equal number of students, 40% of the equal number of students, 40% of the total go to the life science and remaining are equal to divided into maths and art science. See, life science 40% is life science, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मस्ट हैव इक्वल शेयर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग आर इक्वली डिवाइडेड इनटू मैथ्स एंड आर्ट साइंस। सी, सोचो इसके अंदर देखो प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर ये देखो 40% से तो ज्यादा है, ये देखो 50% से भी ज्यादा है, इसका मतलब 50%, ये 50% से ज्यादा है। रेड कलर, रेड ग्रेटर देन 50%, इसका मतलब ये गया। अच्छा, इसके अंदर देखो दिस एंड दिस नॉट इक्वल, ट्राई टू अंडरस्टूड। इसके अंदर देखो दिस एंड दिस नॉट इक्वल, ठीक है, तो ये भी गया, ये भी गया। बट इसके अंदर देखो ये मे बी 40% इक्विवेलेंट टू, बट देखो ये दोनों इक्वली डिवाइडेड है एंड ये दोनों इक्वली डिवाइडेड है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। दिस इज द सिनेरियो।
तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो पाई चार्ट 1 इज द करेक्ट आंसर, आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ओके 60। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 सच दैट नो डिजिट अपेयर मोर देन 1। ठीक है, मतलब ऑल डिजिट क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है, किसको यूज करना है, 1 2 3 4 5 एंड digit 1 is always somewhere to the left of the digit 2। सॉरी, क्वेश्चन में बोल रहा है द डिजिट 1 इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ द डिजिट 2। सी देखो, सिंस 1 must be always to the left of 2, to the left of 2 and both 1 and 2 must present। we need, देखो लेफ्ट में होगा ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या, 1 and 2 प्रेजेंट रहेगा, ये इंफॉर्मेशन हमें मिला। वी नीड 2 more digits, 2 more digits from rest 3 numbers means 3 4 5, so that can be done in, this can be done in 3C2OS और 3C2 यू नो 3 होता है, राइट, ये कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। इन 3C2 मीन्स 3OS। ठीक है, ये 3OS में पॉसिबल है। ठीक है, फॉर ईच सिलेक्टेड सेट ऑफ 4 डिजिट्स टोटल अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, टोटल अरेंजमेंट्स आर, नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। ठीक है, ठीक है, इतना है। अच्छा, एग्जैक्टली half of them will have 1 to the left of 2, ये बोल सकते, लेफ्ट ऑफ 2 ये बोल सकते। सो इस सिलेक्शन कितना कितना मिलेगा, मतलब 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो फॉर ईच सिलेक्शन इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12 पॉसिबल अरेंजमेंट्स, पॉसिबल अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स फाइन। तो फॉर ईच सिलेक्शन 12 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर, तो therefore total number of required, total number of required numbers means 4 digit number, right, 4 digit numbers कितना होगा, 3 केस है इंटू 12 तो कितना होगा 36 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, तो पहले फिर से मैं बोल देता हूं, 1 मस्ट भी लेफ्ट साइड में होगा 2 का, तो ऐसा बोला इसका मतलब 1 2 दोनों प्रेजेंट होगा। नाउ हमें क्या करना है, 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो 2 डिजिट ऑलरेडी ब्लॉक्ड 1 and 2, बाकी 3 4 5 में से कितना पॉसिबिलिटी है, 3C2OA में हम लोग चूज कर सकते हैं, तो वो क्या होगा 3OS होगा। नाउ इस सिलेक्शन सेट ऑफ 4 डिजिट टोटल अरेंजमेंट्स कितना हो सकता है, 4 फैक्टोरियल मींस 24 अरेंजमेंट्स आर देयर, exactly half of them will be 1 to be left of them or left of 2, right, that is 12 possible arrangements are there।
So there are total कितना possible arrangements of 4 digit number, that is 3 into 12, that is 36. आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 is quite easy. Which one of the following Venn diagram is not consistent with the following statement? बोल रहे all A in B. अच्छा, ए को बी के अंदर रहना है, फाइन. बोल रहा है ए को बी के अंदर रहना है, ठीक है, फाइन. डी इज नो डी इज ए, डी इन ए होगा, नो डी इज ए, ओके. इफ होगा डी ए नहीं, सम डी इन ए, ऐसा होगा. ऑल ए आर बी, आर इन बी, ठीक है, ठीक है, इन सी, ठीक है. नाउ फाइन. नाउ डी इन ए, डी इन ए, नो डी, सो इसका मतलब ये सही है, ये भी सही है, ये डी ए के अंदर नहीं है, ये भी सही है, ठीक है, डी ए के अंदर नहीं है. सम ए आर इन सी, सम ए आर इन सी, यस इट इज फाइन, इट इज फाइन, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ये सही है. अच्छा, सम ए आर इन सी, सम ए आर इन सी, ये भी फाइन है, कोई बात नहीं. अच्छा, ये बोल रहा है ऑल डी, डी के बारे में क्या बोल रहा है, डी इज नॉट इन ए, दैट इज ऑल्सो फाइन, एंड डी इज नॉट इन ए. अच्छा, ऑल ए इन बी, ठीक है, ऑल ए इन बी, सम ए आर इन सी, ठीक है, सम ए आर इन सी, बी ए दोनों सेम है तो चलेगा, दोनों सेम है तो फाइन. डी ए के अंदर नहीं है, ये भी सही है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, सम ए आर इन सी, बट यहाँ पे ए कोई सी के अंदर है ही नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए था, ए को सी के अंदर कुछ होना चाहिए था, तो दिस वन रॉन्ग. आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा नॉट कॉन्सिस्टेंट मीन्स डायग्राम 4, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है. इजी क्वेश्चन था, होपफुली इसका आंसर डी. या क्वेश्चन नंबर 19 और 2 क्वेश्चंस मोर, 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. सी क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर शीट ऑफ 10 सेमी साइड्स इज फोल्डेड along its diagonal to form a isosceles right triangle, and the hypotenuse are folded successively 2 times to form isosceles right triangle, ठीक है. What is the length of each equal side after the third folding? यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है जो स्क्वायर है वो 10 सेमी साइड्स है, 10 सेमी साइड्स है, ठीक है. When an isosceles right triangle is folded along the hypotenuse to form another isosceles right angle triangle, the new equal side becomes 1 by root 2 times the previous equal side, the previous equal side, ठीक है. आफ्टर द सेकेंड फोल्डिंग क्या होगा, आफ्टर सेकेंड फोल्डिंग क्या होगा, 10 बाई रूट 2 मीन्स 5 रूट 2 होगा, ठीक है. आफ्टर सेकेंड फोल्डिंग, आफ्टर थर्ड कितना होगा, आफ्टर थर्ड होगा 5 रूट 2 बाई रूट 2, दैट इज 5. क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड आफ्टर द थर्ड फोल्डिंग. आफ्टर थर्ड फोल्डिंग कितना होगा, 5 सेमी होगा, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है. ये है क्वेश्चन नंबर 19. एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 20. बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है वाटर बॉटल कॉस्ट 20 रुपीज,
a water bottle cost 20 rupees, that include the cost of the bottle as well. Okay, if the water cost 15 rupees more than the bottle, what is the cost of the bottle? Let x be the cost of the bottle, cost of the bottle, x rupees basically, right? अच्छा, the cost of water इक्वल टू कितना होगा? कॉस्ट ऑफ वाटर x प्लस 15. देयरफॉर x प्लस 15 मीन्स क्या? बॉटल प्लस वाटर इक्वल टू वाटर बॉटल. फाइन, लॉजिक सही जा रहा है. यहां से x प्लस दिस इक्वल टू वाटर बॉटल का प्राइस कितना है? 20. यहां से 2x प्लस 15 इक्वल टू 20. यहां से 2x इक्वल टू 5. यहां से x का वैल्यू क्या होगा? 5/2 जो कि 2.5 हो जाएगा. आपको 2.5 मिल रहा है. आपको क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ बॉटल पूछा गया है, दैट इज x का वैल्यू क्या है? 2.5 रुपीज. ठीक है, दिस इज द आंसर. आपका आंसर होगा 2.5 आंसर. यहाँ पे क्या मिस्टेक होगा मैं बोल देता हूँ. आपको बोला है वाटर बॉटल कॉस्ट 15 रुपीज मोर देन द बॉटल, तो आप लोग क्या मान लेंगे ना माइंड में? 5 प्लस 15 इक्वल टू 20. तो 15 रुपीज मोर मतलब इसका जो प्राइस था, बॉटल का प्राइस इक्वल टू x रुपीज. तो आपका जो वाटर का प्राइस होगा ना, उसका प्राइस ओनली 15 नहीं है, x प्लस 15 है. दैट इज द मिस्टेक. ये दोनों का साम है 20. देन आपको कैलकुलेट करना है. आप माइंड में ऐसे कैलकुलेट करोगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया. अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं. ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन. होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल दोस एक्सप्लेनेशन. इफ यू फील दैट दिस solution discussion series is helpful for your friends or junior senior, please definitely share with them. Please share and subscribe as well. Thank you.